the Spirit of the Lord is willing to take you to the highest position, the Spirit of the Lord wants to take you to the most holy place, nobody can stop you. I want to lift up my hands towards the Lord and say to God, yes, God, my Redeemer lives forever. My God lives forever. His mercy endures forever. His grace endures forever. His power endures forever. I'm going to pray for the mind that God has given to you. इस समय में खुदावंद आपके माइंड को छुए. Tonight, God, touch your mind this very moment as you can receive the living manna. And you will confirm your each and every blessing in the name of Jesus. Bible says it's just because when you receive, you will proclaim. If you will receive, you will proclaim the glory of the Lord. Amen. Be with them, God. Use them. Hallelujah. Let this word be a tool and a weapon. And each and everything should happen according to the will of you. In Jesus' mighty name. So everyone will say, Amen. Hallelujah. You may be seated. Your Redeemer is living. आपका खुदावंद जिंदा है. Your Redeemer is a living God. आपका खुदावंद जिंदा खुदा है. Bible says this is very important for you to understand. If your God is a living God, you will not gonna be put into shame. खुदावंद के कलाम में लिखा है कि अगर आपका खुदावंद जिंदा खुदा है तो आप कभी शर्मिंदगी को ना देखेंगे. If a God is a living God, this is a confirmation that God is giving to each and every one that every time when you will receive something from the Lord, the God will make it multiply in the name of Jesus. खुदावंद जिंदा खुदा है और यही बात है कि जब आप उस पर यकीन करेंगे तो वो आपकी हर बात को मल्टीप्लाई करेगा, बढ़ाएगा. जोर से बोलो, आपका परमेश्वर मल्टीप्लिकेशन वाला परमेश्वर है. Your God is a God of multiplication. आपका परमेश्वर थोड़ा परमेश्वर नहीं, बहुताई का परमेश्वर है. Your God is not giving less, He is giving you worthily. आपका परमेश्वर थोड़े को ज्यादा तब करता है जब आपके जीवन में वो यीशु मसीह पाया जाता है. He can make few things more when Jesus Christ is in your lives. आज मैं बताना चाहता हूँ इस रे ऑफ होप चर्च में तगार तब बढ़ती है क्योंकि यहाँ पर थोड़े में से भी परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं. The anointing of God reigns over here because the people here are few, but they are filled up with spirit. वचन में साफ लिखा है कि तुम में मेरा आत्मा पाया जाएगा. जब आत्मा पाया जाएगा तुम गैर जुबान बोलोगे. God says that when you will get a Holy Spirit, then you will speak in tongues. तुम गैर जुबान बोलते हुए अपनी जंगों को जीत जाओगे. You will speak tongues and you will win the battles. आपके जीवन में मायूसी कभी नहीं होगी. There won't be a shame. आपके जीवन में कभी भी ऐसी हलाकत नहीं होगी, कमजोरी नहीं होगी. There won't be any dead. There won't be any weakness. Oh, somebody say hallelujah. और जोर से बोलो hallelujah. मेरा परमेश्वर संपूर्ण तौर पे सभी चीजों को पूरा करने वाला परमेश्वर है. My God is the one who makes all these things fulfill mightily. मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर जिसने कहा कि तुम जितनी जैसी भी जिंदगी को लेकर आओगे मैं उसे बदलने की हिम्मत रखता हूं. He says that whatever type of life you have, He change it. परमेश्वर ने आपको जिंदगी दी, आपने दुनिया के अनुसार जिंदगी को बनाया. परमेश्वर ने अपने खून के वसीले आपको फिर दोबारा जिंदगी दी. God has given you life. You made it worldly, but by the blood of Christ, it is being spiritual. जोर से बोलो हालेलुया. यीशु मसीह का खून पवित्र बनाता है. The blood of Christ sanctifies you. मैं आज आपके जहन में जो शक है मैं उसे क्लियर करूंगा. I wanna clear that doubt that's in your mind. आपके माइंड में जो बात चल रही है आज परमेश्वर को पता है. The thing that is in your mind, God knows it. आज इसके बाद आप बोलोगे ये वचन मेरे लिए था. You will say that this word was for me. You know, आज मैं सुबह जब प्रार्थना कर रहा था खुदावन ने कहा कि मैं तेरे को इस्तेमाल करने जा रहा हूं, बहुताई से इस्तेमाल करूंगा मैं. When I was praying this morning, my God promised me that I will use you mightily. मुझे समझ लग गई थी जो परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था परमेश्वर ने पहले मुझे उस चीज के बारे में सिखाया. हालेलुया. I understood that the thing that I was praying for, God has taught me first. आज जितने लोग यहाँ पर जी रहे हैं वो आज फ्रीली जिएंगे यीशु मसीह के नाम में. The people who are living here will live freely. लिव फ्री वाला टैग आपकी जिंदगी में जुड़ेगा. That live free tag will be in your life. और जोर से बोलो हालेलुया. आप बहुत सारी बंदवाई में हो सकते हैं, बहुत सारी सोचों में हो सकते हैं, बहुत सारी आवाजों के अंडर हो सकते हो, पर God is going to make you free from each and every kind of chaos. You could be under so many bondages, under so many voices, but God is going to deliver you and free you from all those things. आपके घराने में ऐसी आवाजें हो सकती हैं, आपके घर पर, आपके कारोबार में, आपके दोस्तों के बीच में, आपके बिजनेस में, पर परमेश्वर आपको उन आवाजों से अब दूर करने जा रहा है. Maybe around you, over your friends, over your relatives, there could be so many voices over you, but God is going to deliver you from all those things. ओ जोर से बोलो हालेलुया.
आज लिव फ्री हो गए, आपकी खानदान लिव करेगा, फ्रीली लिव करेगा, वो इस जिंदगी को बड़ी आजादी से जीने जा रहे हैं. You will live freely and your families will live freely because they are going to enjoy that free life. Somebody say hallelujah. Somebody say hallelujah. And I'm going to tell you the coming month also, and this month we will be preaching, I will be preaching on the sermon of live free. इस महीने और अगले महीने मैं आपको खुदावंद के कलाम में से लिव फ्रीली पर ही कलाम एक मुकद्दस में से सुनाऊंगा. जोर से बोलो हालेलुया. मैंने कल लास्ट टाइम बताया था कि जो अपनी पुरानी जिंदगी से अक जाएगा वो एक नई जिंदगी में दाखिल होगा. I told you last time that whoever is fed up from the old life will enter into a new life. आज परमेश्वर आपको एक नई जिंदगी देखकर परमेश्वर कहता है कि उस जिंदगी में बंदवाई नहीं होनी चाहिए, उस जिंदगी में नुकसान नहीं होना चाहिए, उस जिंदगी में कमजोरी नहीं होनी चाहिए. इस जिंदगी में आपके जीवन में फ्रीनेस होनी, फ्रीडम होनी बहुत जरूरी है. The Lord says that the life that I have given you that should not be in bondage, that should not be in sadness or quietness, but that the life should be joyful. Oh, somebody say बजाओ ताड़ी यीशु मसीह के नाम में हालेलुया. आपकी खुशी से आपका दुश्मन सताव में है. Your enemy is scared of your happiness. आपकी खुशी से आपका दुश्मन जो आपके खिलाफ है वो सताव में पड़े रहा. Your enemy that is against you is in trouble because of your happiness. Oh, somebody say hallelujah. जोर से बोलो hallelujah. Hallelujah. You know, tonight this is a very important part like that we need to follow. आज हम एक ऐसे हिस्से को रिसीव करने जा रहे हैं कि आप हमेशा फ्रीली ही जियोगे. Tonight we are going to receive that portion and that you will live freely forever. आप ब्लॉकेज में नहीं जियोगे. आप You won't live in blockages. आज परमेश्वर एक बहुत बड़ा रेवलेशन दिया है. God has given a big revelation आज today. वो रेवलेशन प्रकट होने जा रहा है. That revelation is going to be appeared. Oh, somebody say, oh, जोर से बोलो हालेलुया. आज वो इंसान जिएगा भी और फ्रीली जिएगा. That person will live and will live free. somebody say हालेलुया. आपको पता है आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें चल रही हैं. In your life there are so many things going on. आपकी जिंदगी में आपके बच्चे हैं, आपका कारोबार है, आपका परिवार है, आपका इन-लॉज है, आपके यार दोस्त है, बहुत सारी चीजें हैं. Your children, your family, your job, your businesses, your in-laws, there are so many things there. परमेश्वर आपको फ्री करेगा कि वो भी फ्री हो सके. God will set you free so that they will be set free. आपकी जिंदगी में जौन से नूर होगा वो उस नूर में चमकेंगे. The light that you'll have, they will live in that light. आपकी जिंदगी में अगर ठहराव होगा वो भी ठहराव में होंगे. If there is stability in your life, then they will be stable. अगर आपकी जिंदगी में भरपूरी वाला आत्मा होगा तो वो भी भरपूरी वाले में And if चलेंगे. you are filled up with the Holy Spirit, then they will be filled up with the Holy Spirit too. Somebody say, जोर से बोलो हालेलुया. अब ये समझना कि हमें फ्रीली जीना बहुत जरूरी है. Now you must understand that we have to live freely. जो इंसान अपनी जिंदगी के साथ, आत्मिक जिंदगी के साथ सौदा नहीं करता वो हमेशा फ्री जिएगा. The one who never plays with his spiritual life will always live free. मैं बताऊंगा आज, मैं क्लियर करूंगा कि हम कैसे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के साथ बिजनेस करते हैं. I will tell you today that how do we do business with our spiritual life. हम अपनी जिंदगी के साथ, आत्मिक जिंदगी के साथ, अपनी प्रार्थना वाली जिंदगी के साथ सौदा करते हैं. How do we do businesses with our prayer life? If we stop doing such kind of business with the spiritual life, if we stop just relating our spiritual life with the worldly life, then definitely we will grow, definitely we will be rising, definitely we will be in the best position, definitely we will be restored, re-equipped, and there will be certain kind of goodness will be seen in our life. और अगर हम अपनी रूहानी जिंदगी को दुनियावी जिंदगी से अलग कर लें तो यकीनन है कि हम बहुताई के साथ जिएंगे और बहुत सी बरकतों को हासिल कर लेंगे. जोर से बोलो हालेलुया. जोर से बोलो हालेलुया. आज एक इंसान जीना चाहता है, वो फ्री जीना चाहता है. Today one person wants to live and want to live free. परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देंगे, जल्दी से देखेंगे. उसके वचन में गलातियां उसकी 5 उसकी 1 में ऐसे लिखा है, It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourself be burdened again by a yoke of a slavery. Galatians chapter 5 verse 1 says, मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो. देखो वहां पे वचन में लिखा है, It is the freedom for the Christ that has set us free. Stand firm then and do not let yourself be burdened again by a yoke of slavery. मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो. Somebody say hallelujah.
आपको पता है कि आपकी जिंदगी में ना जौन सा स्लेवरी वर्ड है परमेश्वर ने उखाड़ कर फेंक दिया. You know that the word slavery, God has plucked that word and sent out your आप life. किसी के अंडर नहीं हो. You are not under anyone. आप बीमारी के अंडर नहीं हो. You are not under sickness. आप शराब के अंडर नहीं हो. You are not under curse. आप मुश्किलों के अंडर नहीं हो. You are not under any problems. कोई भी मुश्किल, कोई भी बीमारी आपको खींच नहीं पाएगी. No problem, no sickness can pull you down. वचन में लिखा परमेश्वर ने स्लेवरी वाला जौन सा स्लेवरी वाला बोझ था वो आपके जीवन से उसे उखाड़ फेंक दिया. God has taken out that yoke of slavery out of from life. कितने लोग अगर परमेश्वर पे जो विश्वास करते हैं वो आजादी वाली जिंदगी जीते हैं. Many people who trust in Jesus, they live freely. Somebody say hallelujah. आपको पता है जब यकूब के बच्चों ने जब 12 गोत थे, जब उनके 12 गोतों को परमेश्वर ने इतना मजबूत कर ठहराया और उनके जीवन में सारी कुवतें दी तो वो बहुत निखरते थे. बड़ी उनकी जीवन का सारी चीजें प्रतिफल में चल रही थी. God has given very mighty things and mighty powers to all the 12 tribes of Jacob, and they were flourishing in those blessings. और वचन में लिखा है कि जब 12 भाई इकट्ठे मिलकर कुछ भी कारोबार को करते थे उसमें वो हमेशा सफल होते थे. And when those 12 brothers worked together in anything, they were so progressive. अब वचन में ऐसा लिखा है कि उन 12 में से उनमें एक ऐसा था जो बहुत अपने पिता के बड़े लायक था, बड़ा प्यारा था, हरमन प्यारा था. And among those 12 there was one who was very near to his father and beloved to him. Somebody say hallelujah. जोर से बोलो. वचन में लिखा कि उन्होंने अपने भाई को बेचा. It is written that they sold their brother. उन्होंने अपने भाई को बेचना की पूरी साजिश रची कि अपने भाई को बेच दिया जाए क्योंकि ये बच्चा अपने पिता के बहुत नजदीक था और उनको वो वाला क्वालिटी टाइम नहीं मिल रहा था. And they made a whole plan to sell their brother because they didn't get a chance to get that quality time to spend. और somebody say hallelujah. आपको पता है कितने लोग इस चीज के बारे में सोचते हैं कि अगर वो अपनी सोच से किसी चीज को सिद्ध कर लें तो वो अपने जीवन में सुकूनियत को पा लेंगे. Many people think that way, that by their thoughts, if they can settle down anything, they will be satisfied. जो कुछ अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में तय कर दिया है वो परमेश्वर उसे पूरा होने में बहुत इंटरेस्टेड दिखाता है. Anything that God has planned for your life, God is so interested to fulfill that thing. परमेश्वर उसमें पूरा इंटरेस्ट दिखाएगा जो परमेश्वर ने आपके जीवन में डाल दिया है. God will show full interest that God has planned for you. अगर परमेश्वर ने आपको जिंदगी दी है वो चाहता है इस जिंदगी में गवाहियां जरूर हों. If God has given you life, He wants that there should be a testimony अगर there. आपको परमेश्वर ने ऐसी जिंदगी दी है वो परमेश्वर चाहता है कि इस जिंदगी को आप फ्रीली जी सको. If God has given you life, God wants you to live freely. आपके जीवन में कोई भी ऐसी बंधुआई नहीं होनी चाहिए. There should be no bondages. Somebody say hallelujah. अब मैं वचन में बताना चाहता हूं कि ये जो भाई थे 12 भाई थे परमेश्वर ने इनको इकट्ठा किया हुआ था पर इन्होंने अपनी सोच से उसे तोड़ दिया. I want to tell you that God has gathered those 12 brothers together, but by their thought they were aparted. तभी परमेश्वर ने 12 चेलों को कहा था कि जब तुम इकट्ठे रहोगे, एकत्रित रहोगे, मिलकर रहोगे, एक आत्मा में रहोगे, तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा. That's why Jesus told His disciples that when you will be gathered together, no one will break you, no one will attack you. और somebody say hallelujah. मैं बताना चाहता हूं कि इनकी जीवन की जो ये बिजनेस करते थे, जो इनका कारोबार था बड़ा फ्लरिश चल रहा था. 12 का बिल्कुल हर चीज में वो बहुत एवरग्रीन रह रहे थे. And I want to tell you that those 12 brothers, when they were doing business together, they were so flourished in it. और वचन में लिखा है कि उन्होंने जब अपने भाई को बेच दिया But when they sold their brother, तो उसमें वो 11 रह गए. then there were only 11 left. वो टूट गए. They broke away. परमेश्वर ने जोड़ा और वो उन्होंने अपनी मर्जी से तोड़ दिया. God gathered them and they departed themselves. somebody say hallelujah. परमेश्वर कहा था कि उस गोत के जितने 12 गोत होंगे, 12 ट्राइब्स जितने होंगे उसमें परमेश्वर का आत्मा मंडलाएगा. And God has promised that in all those 12 tribes there will be a spirit of God hovering जब there. उन्होंने उस चीज अपने भाई को बेच दिया तो उनके जीवन में नुकसान पैदा हो गया. But when they sold their brother, they were facing some problems. तब उसके बाद ही उन्होंने मुश्किलों का सामना करना शुरू किया. And after that they started facing problems. उन्होंने उसके बाद ही अपने बिजनेस में डाउनफॉल देखना शुरू किया. After that they saw downfall in their businesses. Oh, somebody say hallelujah. जब परमेश्वर ने उन्हें इकट्ठा किया हुआ था तो सभी चीजें सही चल रही थी. But when God had gathered them, everything was good. आज पता क्योंकि इंसान आज फ्री क्यों नहीं जी पा रहा है? क्योंकि हमने कई चीजों को तोड़ दिया है. You know why people are not living free together? Because they have departed many things. हमने कनेक्शन जो परमेश्वर ने हमें दिया था हमने उसे तोड़ दिया है. They have broken those connections that God has given them. I can tell you, आप खाना भी खाओगे, आप प्रार्थना भी करोगे, बंदगियां भी करोगे, पर आप मसा में नहीं कभी चलोगे. I tell you that you will pray, you will worship, you will do everything, but you will not live in anointing. जिस परमेश्वर ने आपको
आपको जोड़ा है, अगर आप इकट्ठे मिलकर उस चीज को पूरा नहीं कर पा रहे हो तो आपके जीवन में अधूरापन नजर आएगा और आपकी जिंदगी बंधुआई में होगी. Anything that God has gathered in your life, if you won't do that, then you will be in sadness. और वो बाद में उन्होंने अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में डाउनफॉल देखना शुरू किया. And those 11 brothers saw that downfall in their lives after that. और सब से हालेलुया. आज अगर आपने जीना है ना, तो अगर जीना का अगर अब पूरी तरह आजादी के साथ जीना चाहते हो, परमेश्वर के प्लान में दरार नहीं आनी चाहिए. If you wanna live freely, there should not be any crack in the God's plan. परमेश्वर के प्लान में कोई नाजुक कड़ी नहीं जुड़नी चाहिए. There should not be any loose time in the चाहे plan वो of God. हस्बैंड वाइफ का रिलेशन क्यों ना हो, एक भाई बहन का रिलेशन क्यों ना हो, एक पति पत्नी के साथ उनका रिलेशन, उसके हस्बैंड उनके इन-लॉज का रिलेशन क्यों ना हो, उनके फ्रेंड सर्कल का रिलेशन क्यों ना हो, कलीसिया का रिलेशन क्यों ना हो, अगर जहां पर कमी दिखेगी वहां पर आपका मसा रुक जाएगा. Doesn't matter what kind of relation it is, if it is husband wives or with all other relatives, if there is a crack, then the plan of God will not be there. ओ somebody say hallelujah. अब याद रखना, हम अपने जीवन में दुखी तब होते हैं जब हमारे जीवन में ना खर्चे बढ़ जाते हैं और आमदनी कम होती है. We are sad at that time when we have more expensive than we earn. हालेलुया. ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ना, Isn't it? है ना, कि ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, Our expenses are more, जो इनकम कम है, but the income is less. तो हमारी जिंदगी क्या होगी, स्ट्रेस में होगी कि नहीं होगी. Then our lives will be in stress, right? आपको पता है ये लोग कौन लोग हैं जिनके खर्चे ज्यादा हैं और इनकम कम है. Do you know what kind of those people are who have more expenses than their income? मैं आपको बताता हूँ वो कौन से लोग हैं. I'll tell you that who those people वो are. लोग हैं जो दुनिया के साथ मैच करना चाहते हैं. These people are those who want to match themselves with the वो world, दुनिया के साथ चलना चाहते हैं. who want to walk with the वो world. दुनिया के स्टेटस को मेंटेन करना चाहते They हैं. want to maintain their status with the पर आप world. शायद भूल चुके हो, परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे दुनिया से अलग किया हुआ है. But God has said you that I have departed you from the world. मैंने दुनिया की सभी ख्वाहिशों से, उनकी सोचों से तुझे अलग किया हुआ I है. have separated you from all the thoughts of this world. और समय से हालेलुया. एक बार याद रखना, चाहे आप जॉब पर हो, चाहे अपने बिजनेस पर हो, आपको दुनिया की जरूरत नहीं है, दुनिया को आपकी जरूरत होगी. If you are at your job, at your business, remember that you do not need the world needs you. Do you believe this? बोलो जोर दी हालेलुया. जोर से बोलो हालेलुया. एक इंसान अपने जीवन में अपनी जितनी चीजों को वो दाखिल करता जाएगा, जितनी चीजों को लेता जाएगा, वो अपने स्टेटस को दुनिया के साथ मिलाना चाहता है. And if a person wants to receive and keep more and more things worldly, then he wants to maintain his status the worldly way. अगर आप अपने आप को दुनिया के साथ मैच करना चाहोगे, उसके साथ चलना चाहोगे, उसके स्टेटस को मैच करके अपनी जिंदगी को व्यतीत करना चाहोगे, आप परमेश्वर के प्लान को कभी फुलफिल नहीं करोगे. And if you want to match the status of the world, if you want to match what worlds do, you will never be able to fulfill the plan of God. और समझ से हालेलुया. आज कितने लोग इस बंधुआई में चल रहे हैं, आपको पता है कितनी मुश्किलें, स्ट्रेस है उनको. सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण ही है उनकी इनकम उतनी नहीं है जितने उनके खर्चे बढ़ चुके हैं. And the biggest matter of stress is that the many people earn less, but their expenses are more than they earn. ओ समझ से हालेलुया. मैं आपको आज बता देता हूं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, परमेश्वर ने आपको कोई भी ऐसा काम करने को, कोई भी ऐसा बैटल लेने को कहा नहीं है जो कि आप अपनी सोच से उसे जीत सको. God has said that hasn't allowed you to take that battle, that work, that you should not live by the will of God. ओ समझ से हालेलुया. कितने लोग कहते हैं ना कि अगर हम खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं, खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं ना. Many people says that we want to serve God by something. मेरे को किसी ने कहा था, कहते हैं कि अगर हमारी लॉटरी लग जाती है तो हम चर्च लेना चाहते हैं. Someone said that if I'll get a lottery, I want to give it to the church. हम अगर हमारी लॉटरी लग जाती है, हम प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं. If we get a lottery, we want to do something for God. बोलो हालेलुया. तरीका गलत होगा, रिजल्ट भी गलत ही होगा. And if it is with a wrong way, the results will be bad. आप ये ना सोचो तरीके गलत के साथ रिजल्ट अच्छे निकलेंगे. If you're thinking that by that way the results will be good, no. आपकी अपना कनेक्शन ठीक नहीं होगा तो वहां पर मजबूती नजर नहीं आएगी. If your connection is not good, then there won't be any strength. मैं बताना चाहता हूं आज आपको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आज इंसान फ्री क्यों नहीं जी रहा है. I just want to tell you that why a man cannot live freely. Now this is something very important to understand. The first this says like in the it says choose your battle in your life which want to fight in order to live free. और अपनी उन लड़ाइयों को ध्यान से चुनिए जिनको आप लड़ें और आप आजादी से जिएं. Choose your battle.
अपनी लड़ाई को चुनिए. अब ये याद रखना, परमेश्वर आपको बैटल नहीं देता, आपको चूज करना पड़ता कौन सा बैटल आपको लड़ना है. God never gives you a fight. You choose it, that which you want to fight. God never gives you the battle, but it means that you have to choose the battle which you need to fight. खुदावंद आपको जंग नहीं देंगे, आपको ही चुनना होगा उस जंग को जो आपने लड़नी है. आप अपने जीवन में उस बैटल को चुनते हो, कौन सा बैटल आपके लिए है. You choose that battle, that which is better, good for you. Oh, somebody say hallelujah. आपको पता है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है ना कि खुदा ने साउल को जब चुना, साउल परमेश्वर के लिए सब कुछ करना चाहता था. And it is written in the word that when God chose Saul, he wanted to do many things for God. साउल की क्या गलती थी इसमें? What did he do? साउल चाहता था जब उसने अमलेकिtes को जब मारा, उसके सारे घरों को डिमोलिश कर दिया, सभी चीजों को उसने आक्रमण करके सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया, तो उसने परमेश्वर के काम को पूरा किया. When he killed all the Amalekites around Israel, he did the plan of God. वचन में लिखा था खुदा ने साउल को कहा था कि दुश्मन को मार देना, खत्म कर देना. God has told Saul that kill your enemies, everything. इज़राइल पहले फ्री नहीं चल रहा था, इज़राइल बंदवाई में था. साउल ने आक्रमण किया, साउल ने वो जंग को जीता, अपने लोगों को आजाद किया. Israel wasn't living free, they were in the bondage of their enemies, but Saul came and delivered his people. पर क्या गलती थी साउल की? जब सैमुएल को पता लगा कि ये इस लड़ाई को वो जीत कर आया है, तो उसने एक गलती कर दी और वो परमेश्वर ने उसकी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया. What mistake did he do? And when Samuel came to know that he has done that mistake, he had demolished all the things that he had done. जोर से बोलो हालेलुया. मैंने ये नहीं रखता कि आपका दिल क्या करता है परमेश्वर के करने के लिए. I don't say that what your hearts want to do anything for God. मैंने ये रखता है परमेश्वर क्या चाहता कि आप क्या करो. The meaning is that what God wants you to do. मैंने ये रखता है परमेश्वर क्या चाहता कि आप कैसे बोलो. God wants you to speak. मैंने ये रखता है परमेश्वर चाहता आप किन से मिलो. It's meaning that who God wants you to meet. मैंने ये रखता है परमेश्वर चाहता आप कैसे बात करो. It means that how you say. मैंने ये रखता है कि परमेश्वर चाहता है कि तुसी एक दूसरे नाल बात किदा कर सको. And it is meant so much that how do you fellowship with each other. मैंने ये कभी नहीं रखेगा कि आप क्या चाहते हो परमेश्वर के लिए करने के लिए. It will never be meant that what you want to do for God. वचन में लिखा परमेश्वर तुझे तैयार करता कि प्रभु के लिए कुछ कर सको. God wants to prepare you so that you may do something for आप कुछ God. नहीं करते, मैं कुछ नहीं करता, परमेश्वर का प्लान होता है तब हम करते हैं. You do not do anything, we do not do anything. It is the will of God, the plan of God that we do. Oh, somebody say hallelujah. और जोर से बोलो hallelujah. कोई कुछ गलती नहीं होती. एक शराबी, एक नशे वाले बंदे के साथ आप बात कर लोगे, आपको लगेगा क्या नुकसान, मैं कौन सा शराब पीता हूँ, मैं कौन सा नशा करता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है. If you speak with a drunkard man, you will say that what's bad in speaking with him, what bad I'm doing for myself. मैं तो बात ही करता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है. I just speak with him, what's bad in that. साउल की क्या गलती थी? साउल ने सारे काम को पूरा किया. What wrong did Saul do? पर उसने क्या किया? उसने कहा सभी चीजों को खत्म कर दिया, पर वो जानवरों को बचा कर ले आया. He had killed everything that was there, but he brought their animals back with him. जो जानवरों को बचा के लेकर आया, पता क्या कहने लगा सैमुएल को? मैं जानवरों को इसलिए बचा के लेके आऊं, मैं परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस करना चाहता हूं. And he told Samuel that I brought those animals so that I want to sacrifice those animals in the presence of God. बोलो, जोर दी बोलो. उसने गलत नहीं सोचा, उसने सही सोचा कि गलत सोचा है. He didn't think wrong. Did he thought right or wrong? He wants to do something for the Lord. वो खुदावंद के लिए कुछ करना चाहता था. वो कहता कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूंगा. He was saying that I want to serve God. वो अपने लिए नहीं लेकर आया था. He didn't brought those animals for वो खुदा himself, के लिए लेकर आया था. but for God. आप मेरे को पता है कि आप जो भी करते खुदा के लिए करना चाहते हो. I know that whatever you want to do, you want to do it for God. पर मैंने ये नहीं रखता कि आप कैसे करना चाहते हो. But it doesn't mean anything that how you want to do पर it. मैंने ये रखता कि परमेश्वर चाहता है कि नहीं चाहता है. It means that does God wants this to you or not? मैंने ये नहीं रखता कि आप गैर कौमों में जाकर आप रिश्ते बना लो और वहां पे आपका निकाह हो जाए, आप शादी कर लो, आपको लगेगा कि मैं मजबूती में हूं. मैंने ये नहीं रखता. मैंने ये रखता है परमेश्वर का हुक्म वहां पे पूरा होता कि नहीं होता है. It doesn't mean that if you marry the Gentiles the Gentiles are non-believers, means is that how you marry the believers ones. Somebody say hallelujah. सैमुएल ने क्या कहा? Do you know what Samuel told him? Obedience is better than sacrifice. ताबेदारी कुर्बानी से बेहतर है. परमेश्वर नहीं चाहता था तो नहीं चाहता था. God didn't want it, he never wanted that. आप बहुत कुछ चाहते हो प्रभु के लिए करना. You want to do many things for God. आपको लगता है कि आप लॉटरी खेलोगे, मेगा मिलियन खेलोगे तो आप चर्च के लिए कुछ करोगे. You think that you'll win a lottery, you'll do mega million and you'll do something for God. परमेश्वर नहीं चाहता, पर मसीही लोग कभी लॉटरी खेल के कभी जीतेंगे नहीं. God never wants it, and when Christian people will do that, they will never be flourished. I give you the word, this is not a plan of the Lord. मैं आपको बताना चाहता हूँ ये खुदा का मंसूबा नहीं. मसीही लोगों के साथ miracles होंगे. Christian people will have miracles. उनके लिए मेगा मिलियन नहीं कभी होगा. They will not play mega million. ओ जोर दी बोलो.
जोर से बोलो. बाइबल से I will do the miracles for you. और कलाम कहता है कि मैं तेरे बीच में मौजज़े करूंगा. मैं मिरेकल का परमेश्वर हूँ. I am a God of miracles. मैं तेरे जीवन में मिरेकल करूंगा. I will do miracles in your life. अब ये बात समझ लेना कि अगर आपके जीवन में अगर परमेश्वर यीशु मसीह को आप मानते हो तो मिरेकल्स आपके जीवन में होंगे. And remember that if you believe in Jesus Christ, there will be miracles in your जो life. विश्वास के साथ चलेगा वो आजादी के साथ जिएगा. The one who will walk by faith, they will have a free life. But you really need to choose your battle in which you really need to fight. लेकिन आपको उस जंग को चुनना होगा जिसमें आप लड़ें. बोलो हालेलुया. आपको पता आपको वो लड़ाई लड़नी है Do you know that you have to live that fight जिससे आपके बंधन टूटे. so that you may break your bondages? हाँ, याद आया. अब समझ लग रही है. अब अगर वो लड़ाई कभी मत लड़ना जिससे आपके परिवार के बंधन ना टूटे. Never go in that battle when your bondages are still there. वो लड़ाई लड़ो जिससे आपके बंधन टूटे, आपके बच्चों के बंधन टूटे, आपके परिवार के बंधन टूटे और वो परमेश्वर की यीशु मसीह के नाम में आजादी से जीना शुरू कर दे. Fight a battle so that your bondages and your families and your children's bondages are broken and they may glorify the living God. और सब में से हालेलुया. आपको पता कई बार हम बैटल जानबूझ के वो चूज करते हैं जिसमें हमें ग्लोरी मिलनी हो. Sometimes we choose those battles in which we should be glorified, हमें एप्रिसिएशन मिलना हो, so that we may be appreciated, साडी वावा होवे. so that people may praise us. वो बोलो जोर दी. ਜਿਹੜਾ ਵਾਵਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ. The one who wants praise is so burdened. प्राइड में आ जाता है वो, है ना. बोलो. ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. And the person who wants so many praises, he is always living in pride. अब ये याद रखना कि पत्थर को पानी में फेंक दोगे वो कभी भी तैरेगा नहीं. If you will throw up a stone into a stream, it will never float. क्यों नहीं तैरेगा? क्या होता है वो? Why won't it float? भारी होता कि नहीं? Isn't it heavy? डूबता कि नहीं वो? Doesn't it sink? बोलो हालेलुया. आपके बंधन टूटे नहीं, आप भारी हो अभी भी. If your bondages are not broken, then आपने you are बैटल कौन से heavy. पता कौन से पकड़े जिससे आपको तसल्ली मिलती, आपको खुशी मिलती हो. You have taken those battles so that you may be satisfied. आज भी आपने कोई के बैटल ऐसे पकड़े हुए हैं जिसमें आपको ग्लोरी मिले, जिससे आपको सुकूनियत मिले. You have held those battles so that you may be satisfied. मैं आपको एक बात बता देता हूँ, परमेश्वर आपको वो बैटल लड़ने के लिए कहेगा जिसमें आपकी वावा कभी भी नहीं होगी. God will give you that battle so that you may never be praised, जहां पर आप ब्लॉक हो जाओगे, where you will be blocked. वचन में लिखा है परमेश्वर अपने विश्वास के जरिए आपके जीवन में जो डाला उसके प्रति वो आपको ऊंचा करेगा. It is written that the faith that God has given you, through that God will lift you up. और सब से हालेलुया. We are not living free because we have chosen a battle for our own purpose. हम आजादी से नहीं जी रहे क्योंकि हमने अपने लिए ही अपनी लड़ाई चुनी है. My kid needs to be flourished. मेरे बच्चे तरक्की पाएं. My generation needs to be flourished. मेरा खानदान My business needs to be flourished. मेरा कारोबार बढ़े. This is not the battle that God wants you to be. ये वो लड़ाई नहीं है जो खुदावंद आपको लड़ने के लिए कहते That you हैं. really take those battles. लेकिन आप उन लड़ाइयों को ले लेते हैं. आप समझो आपको वो लड़ाई लड़नी है जिससे आपके परिवार, आपकी जनरेशन के बंधन टूट सकें. You have to fight that battle so that you may break bondages of yourself and your family. और जोर से बोलो. आपके जीवन का सबसे बड़ा सच यही है. The biggest truth of your life is that. And that's why बाइबल वचन में लिखा, परमेश्वर ने इजराइलियों को कहा कि जब तुम कनान देश में जाओगे तब भी तुम्हें परमेश्वर के नाम से आपको जंग लड़नी पड़ेगी. So that when God told Israelites that when you will attack Canaan land, then you will have to go into a fight. आपको पता है जो याकूब के 12 गोत्र कहाँ पर कैनान में थे, कनान में रहते थे वो. And you know that the 12 tribes were living in Canaan. कनान का मतलब है वो वाली जगह जहाँ पे शहद और दूध की नदियाँ बहती हैं. Canaan is a place where honey and milk was flowing. अब वहाँ पर अगर जहाँ पर परमेश्वर का वायदा हो वहाँ पे अकाल कैसे पड़ सकता था? And where there is promise, how there could be a drought? आपको पता है कहीं भी आपने जो परमेश्वर के नाम से जो जिंदगी को पाया है, उस जिंदगी में जब कमी तब आती है जब आप अपने परमेश्वर से एक नाता, एक कड़ी को तोड़ देते, कमजोर कर देते हो. And the life that God has given you is weaker because when you broke that connection with God that He's given बर्डन you. को हमने खुद ले लिया है. We have taken the burden ourselves. मैं आपको बता रहा हूँ हमारे लिए बर्डन बना नहीं है. For us there is no burden. ये बर्डन वाला हालेलुया सी खोल के बोलो. Hallelujah. जोर दी बोलो. हंस के बोलो. ताड़ी बजाओ सारे. बोलो हालेलुया. थकावट वाला हालेलुया नहीं चलना है थे. No lame hallelujah is
asked here. परमेश्वर ने कहा कि खिंच के बोलो, जरा दब के बोलो, तेरे शैतान ਨੂੰ भी पता लगे। God has said that say it loudly, shoutly, then God will know. जैक्सनाइट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਮੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਹੀ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Punjabi people are so renowned the way they shout. ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੋ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਈਫੋਨ 10 ਪਲੱਸ ਗਿਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਗਵਾਚਿਆ ਆ। And if you lose your very precious thing, then you will shout so high. Now this something is very important that God said, this is very important, you need to understand. परमेश्वर ने जब कनान में इस्राएलियों को दाखिल किया, When God brought Israelites into the land of Canaan, वहां पे लिखा है 7 ऐसे दुश्मन परमेश्वर ने पैदा किए वहां पर। there were 7 enemies that they had. परमेश्वर ने पैदा किए वहां पर। God made those enemies for them. आपको पता परमेश्वर ने दुश्मन क्यों पैदा किए? Do you know why God made their enemies? परमेश्वर चाहता था कि ये अलर्ट रहे। Because God wanted them to live आपको alert. पता कई बारी परमेश्वर ने आपके लिए वो दुश्मन तैयार किए हुए हैं। You know that God had made enemies for you? आपको पता होना चाहिए चर्च के बाहर जाते हुए आप मुश्किल में क्यों पड़ जाते हो। You must know that why when you go out from the church, why you are in troubles. अगर आप ऐसी आग में रहोगे तो कोई मुश्किल आपके नजदीक नहीं आएगी। If you live in fire, no problem will come near to आप you. चर्च के बाहर जाते ही आप मुश्किल में पड़ जाते हो, आप ठंडे पड़ जाते हो। When you go out of the church, you become cold and then there is attack. रास्ते से जाते घर जाता बिल्कुल ठंडा हो जाता बंदा। And on your way to the home, you forget everything that you have learned in church. जब बिल्कुल ठंडा हो जाता है तो वो मुश्किलें और ओवर होनी शुरू हो जाती है। And when you forget all those things, then your problems started increasing. आपको अपने परमेश्वर की आत्मा में मगन रहना बहुत जरूरी है। You have to be very connected with the Spirit of God. आपको उसके वचन में मगन रहना बहुत जरूरी है। You have to be very connected with the कि Word. ये वाला वचन है ऐसी तलवार है जो सारी मुश्किलों को चीर देती है। So that this is the Word, that is the sword of God that cuts down all the enemies down. और समझ से हालेलुया। एक उनको परमेश्वर ने कहा, कहते तुम फ्रीली लिव तभी कर पाओगे, आजादी से तब जी पाओगे जब तुम लड़ना सीखोगे। God has said that you will live, you will learn how to live freely, so that when you will overcome all your enemies. एक दो तरह के लोग होते हैं, एक या फिर सरेंडर कर देते हैं, जो लड़कर जीतते हैं। There are two types of people, one who surrenders and the one who fights. परमेश्वर के सामने सरेंडर करके देखना, गोलियत भी शर्मिंदा होगा आपसे। Try to surrender the living God, then the Goliath will be shamed. आगे बात समझ लेना, अगर आप मुश्किलों के सामने सरेंडर करोगे, आप परमेश्वर की महिमा में, प्रशंसा में कभी ऊंचे नहीं होंगे। And if you surrender in front of your problems, you will never be giving praise to the living God. That's what the Bible says. Judges की किताब, न्याय की किताब उसकी 3 उसकी 1:4 में ऐसा लिखा है, These are the nations the Lord left to test all the Israelites who had not experienced any of the wars in Canaan. और जजेस की किताब और उसके 3 बाब और उसकी पहली आयत से कुछ यूं लिखा है, और ये वो कौमें हैं जिनको खुदावंद ने रहने दिया ताकि उनके वसीला से इस्राएलियों में से उन सब को जो कुनान की सब लड़ाइयों से वाकिफ ना थे आजमाए। देखिए वचन में लिखा है परमेश्वर ने उनको टेस्ट किया। God tested them. आप आजादी के लिए ही पैदा किए गए हो। You are born to live free. आपको अपनी आजादी मेंटेन रखनी है। You have to maintain your freedom. आप मेंटेन रखोगे तो आजाद रहोगे। If you'll maintain it, then you'll free. वचन में लिखा परमेश्वर ने कनान में भेज दिया। God, it is written that God brought them into the land सारी of चीजें Canaan. इजीली मिल रही है उन्हें। They were getting everything so easily. पर परमेश्वर को ये पता था कि सभी चीजों में अच्छे हैं। But God knew that they are so good in everything. पर दुश्मन को हराने में कमजोर हैं। But they are weak in taking down their enemies. Choose your battle through which you can break your foundation and you can break the foundation of your children's. उन लड़ाइयों को चुनिए जिनसे आप अपने और अपने बच्चों के बंधनों को, श्रापों को तोड़ सकें। अगर आपने वो लड़ाई चुनी हुई है यीशु मसीह के नाम से कि ये गहरा मसा और परमेश्वर का आत्मा और उसकी सच्चाई, उसके फल मेरे जीवन, मेरे बच्चों में दाखिल रहेंगे, तो आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। And if you have chosen a battle so that you may know that the truth and the life of God will enter in your life, you will never be shamed. इस्राएलियों को परमेश्वर ने कनान में डाला तो उसने कहा, परमेश्वर का मैं इनको टेस्ट करना चाहता हूं क्योंकि इन्होंने अभी तक ऐसी युद्ध का कभी भी फेस नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं किया। God had brought them into the land of Canaan because God knew that they have never faced that battle before. और जोर से बोलो हालेलुया। आप समझ जाओ, जिसने अपने शैतान को हराने में हमेशा कामयाब हुए हैं, वो कभी भी वॉर से, कभी भी बैटल से घबराएंगे नहीं। And you must know that who have always overcame their enemies, they will never be scared of the fighting and आपको पता कई battles. बार ये मुश्किलें इसलिए आ रही हैं, परमेश्वर जान बता रहा है यहाँ पर, ब्रदर जी सुनना ध्यान से, ये मुश्किलें इसलिए हैं, परमेश्वर बता रहा है क्योंकि तुमने अभी तक उसे एक्सपीरियंस नहीं किया। These problems are in your life because you haven't experienced that fight before. अब आपको बैटल को
एक्सपीरियंस करना है, You have to experience the battle. आपको उस युद्ध को एक्सपीरियंस करना है, You have to experience that fight. अपने अपने शस्त्र वस्त्र को अब एक्टिव करना है। You have to take up to your weapons now. आपने अल्फाज बहुत सुन लिया, बोलने की टर्न है। You have learned a lot, you have listened a lot, but it is a turn to speak. ताड़ियां बहुत मार दी हैं, अब आपको गवाही देने की जरूरत You है। have praised a lot, but now it's the time of अब testimony. आपने जितनी चीजों को अपने जीवन में दाखिल कर दिया है, उसे पेश करने की जरूरत है। Anything that you have received, it is time to reveal those ओ things. समय से हालेलुया। वचन को सुनने से आप आजाद नहीं होते हो, उसको सुनकर जब स्वीकार करके बोलता है तो वो इंसान आजाद है। By listening the word, you are not set free. By listening it and obeying it and understanding it will make you free. और जोर से बोलो हालेलुया। आपको पता है कि दुनिया में बहुत सारी मुश्किलें हैं, सारी आपके लिए नहीं बनी हुई। There are so many problems in this world, but all are not for you. हजारों मुश्किलें हैं, आप सभी को ना पकड़ लिया करो कि इसको भी मुझको लड़ना है, इसको भी लड़ना है, इसको भी लड़ना है। सारी मुश्किलें आपके लिए नहीं हैं। There are 1,000 problems around you, but you should not gather all those problems for yourself. ऐसी मुश्किलों को ना पकड़ा करो, उस पर तवज्जो ना दिया करो, जिससे आपके बंधन टूटे ना, जिससे बंधन में और पड़ जाओ आप। Don't look upon those things so that rather breaking your bondages, you get into more bondages. आपके जीवन में अगर कोई चीजें रुस जाती हैं, मनाने में पीछे ना भागते रहे हमेशा। If anything has left you, do not follow those things. अगर आपके जीवन में कुछ चीज निकल जाती हैं, उसके पीछे भागते मत रहे आप। If anything that has left from your life, don't just follow it. वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि तू उसके पीछे भाग, दुनिया की सारी चीजें तेरे पीछे होकर मिलती जाएंगी। God says that follow me and all the things will follow you. ओ समझ से हालेलुया। जिन्होंने परमेश्वर के मसा के लिए जिए हैं, परमेश्वर कहता है कि उनके जीवन में नूर कभी कम नहीं हुआ। The one who have lived for the anointing of God, they are never lacking the light of God. वो ही बैटल लेना जो कि जिससे आपकी उन्नति हो, आप आत्मिक तौर पे इंक्रीज हो सको। Only get those battles so that your spiritual life may increase. तुसी वेले नहीं हो तो मैं भी वेला नहीं है, तो रब भी वेला नहीं है। You're not just sitting lame. I am not sitting lame. Our God is not living this ये lame. भी मुश्किल को मेरे को देखना है, मुझे ये भी मुश्किल को देखना है, मुझे वो भी मुश्किल को टेक कर करना है, मुझे ये भी मुश्किल को टेक करना है। No, it's not for you. You are not that much spared to look upon all the problems that are surrounding you. डिसाइड करो केड़ी बैटल लड़नी है तुसी। You must decide that which battle you जिससे want to तुसा fight, आत्मिक जीवन ते वध सको, so that you may grow in your spiritual life, जिससे ਤੁਹਾਡਾ उन्नति होवे, तारी तरक्की हो सके, ਤੁਹਾਡਾ परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ कर सके, so that you may flourish, you may grow, and God speak with you. ओ समझ से हालेलुया। आपने वो लड़ाइयां पकड़ी हुई हैं जिससे आप अभी भी अपने परमेश्वर से रूबरू बात नहीं कर पा रहे हो। You are holding on to those battles and you are not able to speak with मैं God कह रहा हूं face कि to अभी face. तक जो लोग गैर जुबान नहीं बोल पाए, क्यों इसलिए नहीं बोल पाए हैं क्योंकि अभी तक भी उन्होंने अपने आप को उस जगह पे बिजी रखा हुआ है जिसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। People who couldn't speak in tongues because they are still busy in worldly things. आज भी उन लोगों ने अपने जीवन में इस करके सरगर्म नहीं हो पाए हैं, परमेश्वर के आजादी से जी नहीं पाए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कहीं दूसरी जगह पे बिजी They are किया still हुआ not है। active in God. They are still not connected with God because they are connected with the world. ओ समझ से हालेलुया। अगर जो इन व्यक्ति ना अपनी प्रार्थना वाली वक्त के साथ ना कॉम्प्रोमाइज करता है, वो कभी इंसान आजाद होगा ही नहीं। The person who always compromises with the timing of his prayers will never be flourished in spirit. बोलो जोर दी। जिस व्यक्ति ने अपने प्रार्थना वाली जिंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर में आजाद हो ही नहीं पाएगा। The one who have compromised his prayer life will never be connected in God. आपको पता है क्यों हमें नींद क्यों आती है चर्च में? Do you know why we are so sleepy in church? Hallelujah. बोलो जोर से बोलो। आज मैं क्लियर करता हूं आपको। I want to clear that to you now. There's a reason कि हमें नींद क्यों आती है चर्च में। I want to clear it that why we feel so sleepy in church. जोर से बोलो। Say it loudly. जोर से देखो, फिर देखो उधर ही बोल, सुस्त जा बोलते, जोर से बोलो। मैं टाइम ताई रखा हुआ है 4 बजे का, तो 2 बजे की रोटी खा के आया करो। I have decided the timings 4 p.m. so that you may take lunch at 2. इधर सुनना नहीं, इधर परफॉर्म भी करना है। You must not just listen here. You have to perform This it. is not a silent church. ये खामोश चर्च नहीं है. आओ बोलो और जोर दी बोलो। इथे घंटियां नहीं सुननगी, इथे परमेश्वर का आत्मा का शोर सुनाई देगा। You won't listen bells here. The shout of the hallelujah. और you will जोर से listen. बोलो। आपको पता है कि आप आज भी क्यों सो जाते, नींद क्यों आती है चर्च में? बताता हूँ यहाँ आपको। Do you know why you get sleepy in church? I want to tell you. सुस्त क्यों हो जाता है बंदा ना, थोड़ा सा ना कोजी सा हो जाता है चर्च में। Why do you get slow? Why do you get cozy in church? मैं बताता हूँ, आप कभी भी प्रार्थना ऐसे मत करना कभी। Do not pray just binding your hands ये बड़ा together. कंफर्ट जोन है। This is a very comfort zone. हाँ, ये बड़ा कंफर्ट है। पहला हौली हौली इथे हाथ हुंदा है,
Initially, your hands are so touch each other, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, and then you lay down your hand on it, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। and then you just put it under your head and lay down. बोलो। वचन में लिखा था कि वचन में कलाम में लिखा हारून को ये पता था मूसा अगर हाथ उठाएगा तो जंग जीतेंगे। And it is written that Aaron knows that when Moses will lift up his hand, they will win the battle. अगर वो चाहता तो वो ऐसे भी प्रार्थना कर सकता था, He might have prayed by bowing down there. क्योंकि उसे प्रार्थना ऐसे की है। He had prayed raising his hands. जो स्कूल से जो आप होमवर्क नहीं करके आपको पनिशमेंट मिलती है ऐसी वाली, है ना? And when you do not do your homework, teacher punishes you to raise your hands. Lift up your hands, अपने हाथ उठाइए, है ना? ऐसा कर देना, ऐसा करके lift up your hands. सानू भी पनिशमेंट मिलती सीगी, We also got punished, सब ऐसे थोड़े चालाक होने सीगे, but we were so clever. है ना? क्या होता था कि हमें पनिशमेंट मिलती, हम दीवार के साथ थोड़ा थोड़ा लग जाते थे ऐसे करके। And when we got punished, we stepped back by laying down and having comfort with wall. टीचर को पता लग जाता, कहते नहीं आगे आ जाओ। Teacher got to know and told us to come forward. कहते इन्होंने इतना बंदा नहीं बनना, तुम इतना करो, बेंड होके खड़े हो जाओ ऐसे। And she said that they will never be corrected that way. Just bow down with your knees. बोलो, आएगी नींद फिर? Will you get sleepy? बोलो, और जोर दी बोलो। आपको पता प्रॉब्लम क्या है कि हमने बॉडी को अभी भी अलाउ किया हुआ है कि अपनी मनमर्जी कर सके। The problem is that we have allowed our body so that it may create problems. ये आपको चला सके अपने मुताबिक, so that it may lead you. है ना? इतने पसंद नहीं तो इधर हो जाइए, इधर तो इधर हो जाइए, कोई गल नहीं, इजी हो जाइए। If it is not comfortable here, it should be comfortable there. You know, that's why the Bible is always talking, it's not about your comfort zone that your body required, it's about the spirit comfort zone according to the spirit that you really need to move in your life. और कलाम कहता है कि अपनी आसानी में ना जियो बल्कि रूहानी आसानी में जियो ताकि तुम जी सको। वचन में लिखा है कि खुदावन ने अलीशा को चुना, अलीशा को चुनते ही अलीशा ने कहा, दो लोगों को तूने अनॉइंट करना, वो राजा बनेंगे। And God chose Elisha and he told him that you should anoint two people and they will become king. जोर दी बोलो हालेलुया, बोलो जोर दी हालेलुया, जोर दी बोलो हालेलुया। अलीशा ने कहा दो लोगों को चुनो, एक का नाम हजाएल होगा, दूसरे का नाम जेहू होगा। And there were two men, one was Hazael and the other was जेहू। और वचन में लिखा खुदावन ने कहा, अब कहा कि जब मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा, अपने पुरानी सारी चीजों को खत्म कर देना जाकर। And God had told them that when I will make you king, finish all your old things. कहते पुरानी चीजों को बिल्कुल सब कुछ खत्म कर देना जाकर। Just forsake your old life. और समझ से हालेलुया। अब पता लगा, जब जेहू को पता लगा कि परमेश्वर ने मुझे अनॉइंट किया, मुझे मसा किया है, मैं उन राजों को जाके खत्म कर दूंगा जो मूर्ति पूजा करते हैं, उनको खत्म कर दूंगा, जो गलत काम करते हैं उनको खत्म कर दूंगा, जो परमेश्वर के नाम में सभी गलत चीजों को जन्म देते हैं। And when Jehu came to know that God had anointed him to be a king, he decided to kill all the people who do idolship and go against the will of God. और समझ से हालेलुया। जेहू ने अपने सारे सोल्जर के शस्त्र उतारे। Jehu taken down all his weapons. वो अहाब के पैलेस की तरफ भागा। And he ran to the place of Ahab. अहाब जो था राजा था, बड़ा क्रूअल था। And Ahab was a so cruel king. और वचन में लिखा कि जेहू वहां पे पहुंचा। And Jehu went there. वो अकेला ही था। He was alone. जोर से बोलो, आपको किसी की जरूरत नहीं, आप अकेले ही हो। You do not need anyone. You alone is अकेले enough. 1000 के बराबर हो। बोलो हालेलुया। You alone is enough for thousands. ओ जोर से बोलो हालेलुया। आप सभी जंग जीतने की क्षमता रखते हो। You alone is able to win all the battles. आप सभी अच्छी चीजों को पाने की क्षमता रखते हो। You are able to get all good things. आपके ऊपर नूर चमकेगा, आप आजाद भी होंगे। The light will shine upon you and will set you free. आपकी जनरेशन, आपके बच्चे भी सुकूनियत में रहेंगे। Your children, your generation will be free. ओ समय से। और वचन में लिखा जेहू वहां पे पहुंचा। And word says that Jehu went there. वहां पे जो सूबेदार था उसने देखा जेहू वहां से भागता हुआ आ रहा है। And the high soldiers saw that Jehu is coming running there. उनको पता ये हमारा ही बंदा है। He knew that he's our man. पर अब जेहू को पता था मैं इनके अंडर नहीं हूं, मैं अपने परमेश्वर के अंडर हूं। But Jehu knew that I am not under them, I am under the living God. आप बाहर जाते हैं दुनिया में, लोगों को लगता है कि आप उनकी जैसे हो। And when you go out, people think that you are like them. पर वचन में लगता है जब आप मुंह खोलते तो पता लगता है कि आप किसके लोग हो। But the word says that when you speak, people came to know that who you are. आपकी जिंदगी में जो दुख है वो आपके लिए गवाही का कारण है। The problem that is in your life is for your testimony. आपको ये बोलना है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मेरा परमेश्वर मेरी जिंदगी में जिंदा रहेगा। You must say that whatever happens, my God will be my God. मैं अपने परमेश्वर से कभी दगा नहीं करूंगा, मैं उसे बिल्कुल दलेरी के साथ अपने जीवन में रखूंगा। I will never step back from God. I will keep him courageously. जेहू वहां पे पहुंचा। Jehu went there. अब से कहने लगा जेहू सब कुछ ठीक है। He told them and he asked him, is everything okay? आज के बाद वो ही होगा
जो परमेश्वर चाहेगा। Everything will happen what God will. आज मैं उस राजे को खत्म करना चाहता हूँ। I want to kill that king. आज मैं उन सभी बाल के पुजारियों को खत्म कर दूंगा। I want to kill all the people who do idol worship to Baal. ओ समझ से हालेलुया। उसने कहा तुम 10,000 हो, You are 10,000. मैं अकेला हूँ, I am alone. मेरे परमेश्वर ने मुझे कहा है My God has said मैं it. यहाँ से खाली नहीं जाऊंगा, I will not go मैं empty. खत्म करूंगा, I will kill it. मैं जीतूंगा, I will win. और मैं अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा And I करूंगा, will glorify my मैं God. आजादी में रहूंगा। I will live free. और जोर से बोलो हालेलुया। येहू वहां पे पहुंचा Jehu went there और उसने कहा कि याद रख अब मैं वो काम करूंगा। and he told them that I will do something. और जो उसका सूबेदार था वो भागा अंदर पैलेस के अंदर, And that high soldier ran inside. वो अहाब को बताने लगा He was telling Ahab कि जेहू बहुत गुस्से में है। that Jehu is so angry. और जेहू को वो पास आके कंसोल करने लगा, And he came near to Jehu and started तू consoling गुस्से him. में क्यों है? Why are you so angry? कहता तूने अपने परमेश्वर के प्रति गुनाह किया और परमेश्वर चाहता है कि तुझे खत्म करना। He said that you have sinned against your God and God wants you to finish you up. एक बात समझ लेना, जो परमेश्वर जो चीज नहीं चाहता आपकी जिंदगी में वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपकी जिंदगी में। Remember one thing, that anything that is in your life that is not by the will of God We should are not be doing there. lot of sin through WhatsApp and Facebook. हम WhatsApp और Facebook के जरिए से बहुत से गुनाह कोई कर नहीं रहे बचता, हैं. मैं बता रहा हूँ कोई नहीं बचता। हर एक इंसान जो WhatsApp Facebook करता है ना वो कहीं ना कहीं गुनाह भी करेगा, मैं बता रहा हूँ। Any person who is using WhatsApp or Facebook will definitely sin क्योंकि sometime. आपको पता है इंटरेस्ट लेवल दुनिया के साथ चल रहा है हमारा। Because our interest level is with the world. जौन से मीडियम्स आपने बनाए हैं ना उसे आप अगर परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करोगे तो परमेश्वर उसमें भी आजादी देगा आपको। Mediums that you have decided, God will use you in that way. आपको पता है, आपको इन चीजों को टूल्स बनाओ। डोंट मेक देम अ ड्राइवर इन योर लाइफ। Make those things as a tool for you. Don't let them drive your lives. अगर वो उसको टूल बनाओगे तो आपके इशारे पे नाचेंगे। If you'll make them your tool, then you will use it your way. अगर उनको ड्राइवर बना दिया तो वो आपको लेकर चलेंगे हर जगह। If you'll keep them as a driver in your life, they will drive your life. बोलो जोर दी। उसको टूल बनाओ, ड्राइवर मत बनाना। Make it as your tool. Do not make it as a driver. लोग जो मर्जी आपके बारे में बोलते हो वही होगा जो परमेश्वर ने आपके मुंह से निकाल दिया। Doesn't matter what people say about you. Everything will happen that God has decided for you. और वचन में लिखा कि उसने अहाब को मारा। Word says that he killed Ahab. और कितने ऐसे लोग थे जब जेहू बोला तो सभी कांप उठे, वो भागे वहां से। And many people were there when Jehu started speaking. They just ran away. जोर से बोलो हालेलुया। तब आपको ये समझ आनी चाहिए शैतान की कितनी ऐसी चालाकियां होती हैं, वो सिर्फ कोशिश करता, कर नहीं सकता कुछ। You understand that Satan has such strategies and he cannot do those things. आपको कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है, बस विश्वास से खड़े हो जाना, वो वैसे ही भाग जाएगा वहां You से। don't have to say anything. Just stand firmly with faith and he will flee. उसने जेहू की आवाज सुनकर ही डर गए सारे। They were so scared by listening the voice of ओ Jehu. सब से हालेलुया। आपका हालेलुया इतना बुलंद हो कि धुआं दौड़ना शुरू हो जाए। Your hallelujah should be so high so that all the evil spirits should flee ओ जोर away. से बोलो हालेलुया। आपके घराने से हालेलुया की आवाज आनी बहुत जरूरी है। In your families there should be a shout of hallelujah. somebody से जोर से बोलो, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। जितना बोलोगे शैतान कांपता जाएगा। The more you'll say, then the Satan will be trembled. आप फ्रीली जियोगे यीशु मसीह के नाम में। You live freely. और वचन में साफ लिखा है उसने जेजबेल को जेजबेल रानी को जब देखा, And it is written that when he saw Queen Jezebel, वो कांप उठी she trembled और उधर से खिड़की से वो गिर गई and she jumped from the window और वो मर गई। and she और died. परमेश्वर ने कहा था अलीशा के थ्रू, God had told it through Elisha इसकी लाश को कुत्ते चाटेंगे। that the dogs will lick her blood और from वैसा that, ही हुआ। and it had happened. और जोर से बोलो हालेलुया। और वचन में लिखा था खुदावंद जेहू की जिंदगी से इतना खुश था And God was so pleased with Jehu, और उसने उसे इजराइल का राजा बनाया। he made him the king of और Israel. उसके ग्रैंड चाइल्ड को परमेश्वर ने उस पदवी दी जो सबसे ऊंची पदवी थी और उसका नाम निम्शी था। And he gave his grandchild a position that was so high among all. And the meaning of Nimshi is And his name was Nimshi, and it means who has taken out from danger. that जो खतरे में से बाहर निकाल लिया गया हो. जोर से बोलो, आप खतरे से बाहर निकले हुए हो। You are out from that danger. और जोर से बोलो हालेलुया।
आप फ्रीली जियोगे यीशु मसीह के नाम में। You will live freely in the name of Jesus. आपको पता कि शद्रक मेशक अबेदनगो आग देखकर बोल भी सकते थे, हे राजा हम टाइम बीइंग तेरे सामने सजदा कर देते, दिल तो रब दा ही है, कह भी सकते थे वो। Shadrach, Meshach and Abednego might have said, seeing those fire, to the king that by timely we will worship you. उनको पता था कि अगर वो आग में जाएंगे उनकी नस्लों के बंधन भी टूटेंगे। They knew that if they will go into that fire, the bondages of their generations will be broken. डैनियल को ये पता था कि शेर चाहे जैसे मर्जी हो पर मैं अपने मुंह से छू तक नहीं करूंगा। Daniel knew that doesn't matter how mighty those loins are, I will never speak of वो word. शेरों के सामने इसलिए खड़ा रहा, इसलिए चुप रहा, इसलिए वहां पर अपने विश्वास में कायम रहा क्योंकि वो बंधन अपने और अपने आने वाली पुश्तों के तोड़ना चाहता था। He stood against those loins so mightily and bravely because he wanted to break those bondages of himself and his generations. जो आज के दुख में टिका रहा वो कल और उसकी जनरेशन हमेशा आजादी में जिएगी। The one who is firm in today's problem, in today they will be so prospered. Oh, somebody say hallelujah. जल्दी से एक वचन पढ़ेंगे and then I will continue by next week. And it says पहला पत्रस की 1:13 में ऐसा लिखा, therefore prepare your minds for action, keep sober in spirit, fix your hope completely on the grace to be brought to you at the revelation of Christ Jesus. खुदावंद के कलाम पहला पत्रस उसके पहले बाब और उसकी 13वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांधकर और होशियार होकर उस फजल की कामिल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है। बाइबल में लिखा है इसलिए मानसिक रूप से सचेत रहो। अब just be active so that you can fight that battle. अपने आप में तैयार रहिए ताकि आप उस जंग को जीत सकें। If you're ready to accept the battle through which your foundations will be broken and through which your generations will be free, you need to choose and adopt such kind of battles. अगर आप उस लड़ाई को चुनना चाहते हैं जिससे आपके और आपकी जनरेशंस के बंधन टूट जाएं, तो वही लड़ाई आपके लिए अच्छी है। तभी परमेश्वर कहेगा get ready for an action. इसलिए खुदावंद कहते हैं कि लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। और जोर से बोलो हालेलुया। आपकी प्रार्थना में ऐसा असर हो, your prayer should have that जब आप प्रार्थना करें तो अंधकार की ताकतें कांप उठें, so that when you pray the Satan trembles. आपकी प्रस्तिश में ऐसा असर होना चाहिए जब आप प्रस्तिश करो आपके साथ वाला इंसान मस्सा में झूम उठे, so that your worship should in a way that the person beside you should dance. The word is active. कलाम मतलब ये है When you're in होशियार church, you रहो, need to be active. होशियार रहो, You really need to be active. होशियार रहो। और जब आप एक्टिव हो, And when you are active, आपको कोई कमजोर नहीं बना पाएगा। no one can make you weak. Somebody say hallelujah. जोर से बोलो hallelujah. दिमाग को खाली करके आया करो जब चर्च आते हो। Come church with your empty minds. आना बिल्कुल खाली करके उस प्रेशर को निकाल कर आया करो। Just take out that pressure out from you. अगर प्रेशर अंदर है वर्ड नहीं जाएगा यहाँ पर। And if there is a pressure in your mind, word will not enter in वर्ड it. वहाँ पर दाखिल होता है फिर किसी चीज को आने नहीं देता फिर। And when word enters in it, it will not let anything else allow in it. Somebody say, जोर से बोलो हालेलुया। अब ये समझ लेना कि आपने अपनी जिंदगी को फ्री बनाना है और उसे मेंटेन रखना है, वही जंग लड़ना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। You must now understand that you have to maintain your freedom and get that battle that is good for you. और somebody say हालेलुया। और वचन में साफ लिखा था, एलीशा ने उन्हें कहा था, हाँ, And word clearly says that Elisha told them अगर कोई इंसान जेहू से बच गया, that if anyone is spared by Jehu, हजाएल उसे खत्म करेगा। Hazael will kill it. अगर कोई इंसान हजाएल से बच गया, If anyone who is spared by Hazael, एलीशा कहता मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। Elisha said that I will kill him. अगर मुझसे भी कोई बच गया, If anyone who is spared from me, मेरा परमेश्वर ना सोता है ना अंगुलाता है, my God never sleeps nor slumbers. वो उसे पकड़ के खत्म करने की हिम्मत रखता है। He is able to kill it. ओ जोर से बोलो हालेलुया। उसने कहा मैं चाहे कमजोर पड़ सकता पर मेरा परमेश्वर कमजोर नहीं पड़ेगा। He said that I might be weak, but my God is not weak. ये समझ लेना, जो परमेश्वर चाहता है उन चीजों को खत्म करना, वो खत्म कर दो आज। You must understand that things that God wants to finish, you must finish वो those वाली things. ख्वाहिशें जो आपके बंधनों को तोड़ नहीं रही, खत्म कर दो उसे। Finish those things that you wanted. जौन से वो वाले एहसास जो आपके बंधन को तोड़ नहीं रहे, खत्म कर दो उसे। Finish those emotions that are not breaking your bondages. वो वाली चीजें जो आपके जीवन को खुलासे में नहीं लेके जा रही, आजादी में नहीं लेके जा रही, खत्म कर दो उसे। Things that are not letting you free, just finish it. और somebody say हालेलुया। मैंने कहा था लास्ट वीक भी, जो पुरानी जिंदगी से अकेगा वो ही नई जिंदगी में नूर में चमकेगा। I said last week that one who is fed up from their old darkness will live in a new light. जोर से बोलो हालेलुया।
मैंने बताया था एक बैलून जौन सा जिसमें हीलियम था, क्या था उसमें जो उसे ऊपर करता था? उसके अंदर सिर्फ हीलियम था. And I have shown you a balloon here that had helium in it. That was taking it high. दूसरे बलून में हीलियम नहीं था, वो ऊपर जाता था, नीचे आ जाता था. And in other balloon there was no helium. It fell down. क्या आप में क्या है? वो कौन सी चीज आपके अंदर है जो आपको ऊंचा उठाती है? What's in you that lifts you up? हाँ, somebody say hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया. विश्वासियों के अंदर परमेश्वर का आत्मा पाया जाता है, वो इस करके उकाब की तरह उड़ते हैं. In believers there is a spirit of God. That's why they soar like eagles. चाहे दुनिया में जितनी मर्जी मुश्किल क्यों ना हो, आप उड़ोगे, जीतोगे यीशु मसीह के नाम में. Doesn't matter how much problems around you, you will soar like eagles and you will win. You will connect to your Lord, confirm, and there will be a confirmation will be seen in your life. अब अपने खुदावंद के साथ जुड़ेंगे और एक बड़ी गवाही आपके पास आएगी. And that's why the God says, I am the Lord who remains the same forever. और इसलिए खुदावंद कहता है कि मैं अब्दुल आबाद एक सा हूँ. और जोर से बोलो, आपकी मुश्किलें दफन है यीशु मसीह के नाम में. Your problems are buried in the name of Jesus. मैं हर सुबह अपनी मुश्किलों पे पैर रख कर आता हूँ. Every morning I stand on my problems. मैं अपनी उदासियों पे पैर रख कर आता हूँ. I crush my sadness. मैं अपनी सुस्तियों पे पैर रख कर I आता हूँ. crush my slowness. मैं अपनी नालायकियों पे पैर रख कर आता I हूँ. crush my unworldliness. जिसने उसे पैर के नीचे खत्म कुचलने की तान ली है, वो कभी भी उसके सिर पे नहीं बैठ पाएगा. The one who have decided to crush his problems will never see them again. बताया करो कि तू, तेरी जगह यहीं पर है, तू इधर बैठ भी नहीं पाएगा. Proclaim it and tell it that your place is under my foot. ओ जोर से बोलो, Jesus power, super power, शैतान power zero, Jesus power. Super power. You are the superheroes of a living God. आप खुदावंद के सुपर हीरो हैं. आपका डायरेक्टर आपका खुदा है. Your director is your God. You are the great actors in the name of Jesus. You are good actors. यीशु के नाम से हैं. आपकी मूवी फ्लॉप नहीं होगी कभी. Your movie will never be flopped. और जोर दी बोलो, और जोर से बोलो. Hallelujah. बाकी फ्लॉप होंगे, ਤੁਸੀਂ नहीं होंगे. Others will flop, but you will not. जिन्हां दी शक्लां नहीं, ਉਹ ਵੀ ਚੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਨੂਰ ਚਮਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ. The one who didn't have a glory on their faces, they are high, and you are living in the light of God. बोलो, और चढ़ो ऊपर यीशु दे नाम दे विच. हालेलुया. ओ काब नो उड़ो यीशु दे नाम च. हालेलुया. जो से ताड़ी बजाओ यीशु मसीह के नाम से. हालेलुया. I will continue my sermon by next week also. Like, and there's other points that I really want to continue because this is something very important to understand. We need to live free. अगले हफ्ते इस बात को हम जारी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें आजादी से ही जीना है. Are you free in the name of Jesus? क्या आप आजाद हैं यीशु के नाम में? Are you free? क्या आप आजाद हैं? जोर से बोलो. हालेलुया. जोर दी. इस दीवारों को पता लगे यहाँ पे हालेलुया बोला जाता है. बोलो हालेलुया. आपको वचन में लिखा है ये हवा में जो सी आवाज चल रही है, वे भी गूंज गूंज कर गवाही देगी कि आपने हालेलुया बोला था. That voice that is hovering here will testify that you have said hallelujah. आपको पता, साइंस में भी, साइंटिस्ट ने भी इस चीज का इसको डिस्कवर कर चुके हैं कि जीसस की आवाज इस एयर में है. Scientist has discovered that the voice of Jesus is in this air right now. आपको जितने मर्जी आपको बोल दे, कितने मर्जी लोग कह दे कि ये परमेश्वर में इसने कभी कबूल नहीं किया, जो मुंह से बोला जाएगा परमेश्वर के स्वर्ग राज में पहुंचेगा वो. Though people say that he haven't confessed about Jesus, but whatever you will speak, it will go into the heavens. In the mighty name of Jesus, somebody say. सभी अपनी आंखें बंद कर प्रार्थना करें. सभी अपने पैरों पर खड़े हो जल्दी से. Let me pray for you in the name of Jesus. You are here to live free. You are here to give glory to God. You are here to prepare yourself. You are no more a weak. You are no more a feeble. You are no more a kind of personality that nobody will get anything. You are a person. You will get everything in the mighty name of Jesus. There will be prosperity to be seen. There will be blessing to be seen. There will be great honor to be seen in the name of Jesus. खुदावन तेरे नाम से खुदावन जब तू आजादी को देता है खुदावन, वो भरपूरी के साथ होती है. यीशु मसीह तेरे पाक और पवित्र नाम से खुदावन मांगता खुदावन, आज वे वो जंग को लड़ेंगे खुदावन जिससे इनके और इनकी जनरेशन के बंधन टूटेंगे. खुदावन ये कभी भी बंधुआई में और कभी भी मुश्किल में ना रहे और तेरी आजादी में अब से लेके हमेशा आगे बढ़ सके. यीशु मसीह के नाम से मांगते, सभी बोलेंगे.